Hello friends, in this video you will get to know how to access to Diksha app, how to log in. So first of all you must have Diksha app in your mobile. Alright, what you have to do, here you will get the all content related to CBSE syllabus, including important questions as well as important PPTs and many more. So first of all you install it from Play Store, and then how to use it I'll show you. So open it from here. You can register it with your number, or you can register it with your email ID. So here we have different syllabus for different class. So I am teaching 10th class currently, so using 10th class. So here everything you will get, every teaching material. Like I want geography, so I will open from here. There will be the interesting questions or important questions related to exams, board exams. Here are given short answer type questions, long answer type question, and multiple choice questions that can be asked in exams. So most of the important question you will get from this app. So here, how to log in it, use profile. Here, change role. If you are a teacher, then write here teacher. Change role, you can change your role this way. Now login option you are having here. So login it, either you can use your email number, phone number for login. Either you can do it by Google, like you are accessing your phone or any other app. So any ID you can use for it. Okay, so it's taking time because of poor connection here. So now it's accessing, right? You need to agree with the terms and condition of Diksha app. Do it, agree, and use it. You can read it. I have already read, so read it completely, then agree, and then log in, continue. So now you can select your board, like I am teaching CBSE, then submit. Medium, English, Hindi, Urdu, Sanskrit, whatever. English and class whichever you like to submit. So I'm using 10th. Profile updated. Now select state, district, whatever. Alright, and now you will have this data. Profile is updated. ये आपके पास सिलेबस आ जाएंगे. उसके बाद आपने प्रोफाइल पे दोबारा से क्लिक करना है, एंड आपके पास यहाँ पे ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कंप्लीटली. रूहानी लर्निंग वर्ल्ड चैनल का मतलब ये मेरी ईमेल आईडी का नाम है, तो वो ऊपर आ जाएगा. आपका जो भी नाम होगा ऊपर शो हो जाएगा आपको, और कौन सी ऐप से आप चला रहे हो, डिस्ट्रिक्ट सोलन वगैरह जो आपका है वो आपको दिखाई देगा. यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो बाद में आप. और देन यू हैव टू डू सबमिट डिटेल. यू कैन ईदर यूज योर मोबाइल नंबर. Okay, they are not sending any unnecessary message, so you can submit it now. Now I am a dash, what you are, teacher or other, you need to submit here with which state you are belongs to, either Haryana, Himachal, whatever you can use. All right, then you can use your mobile number here. Now your number will be valid, then it will send you OTP. OTP आने के बाद आप उसको यहाँ फिल कर लेंगे, सबमिट कर देंगे. ओके, अब आपका नंबर कंफर्म हो गया है. देन स्कूल का नाम आपने फिल करना है यहाँ पे. स्कूल का नाम लाइक अकाल अकेडमी, डॉक्टर साहिब. ओके, आईडी, अब यहाँ पे आपने आईडी फिल करनी है अपने स्कूल की, एंड बोर्ड यूज़ करना है कि कौन सा बोर्ड है आपके स्कूल में, CBSE. आईडी में आपने एफिलिएशन नंबर फिल करना है. आईडी ऑल्सो CBSE अच्छे से चेक करके फिल करना है, एंड फिर CBSE. फिर आपने इसको एग्री कर लेना है एंड सबमिट कर देना है. यू कैन एडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल इफ़ यू नीड इट. आप इसको बाद में ऑल्टर भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है. चेक योर डिटेल्स हियर वट एवर यू हैव फिल्ड. सो आई एम अ टीचर विद हरियाणा, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल शो हो जाएगी. एंड जो आपका आगे दिया हुआ है नंबर वगैरह, ये आप अपडेट भी कर सकते हो कभी भी जब आप. हियर यू विल बी हैविंग योर Diksha ID. You can even create your group through the Diksha ID. You must know your Diksha ID and anyone can add you. So what you have to do next? Here in your profile, you will having here 3 lines जहाँ पे थी वहाँ पे आपने create groups पे जाना है, my groups पे. यहाँ पे create करना है ग्रुप. अगर आपका नहीं है तो create group की ऑप्शन आएगी.
I have already created a group. So if I want to show you how to create a group, यहाँ पे आपके पास options बनी हुई है, people का साइन है, प्लस का साइन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है. Then enter your group name. आप अपने ग्रुप का नाम लिख लो कोई भी. Suppose I am making here biology group grade 10th. ऑल राइट. सो मिनिमम यहाँ पे आपके करेक्टर्स दिए हुए हैं कितने लिखने हैं. एंड ग्रुप डिस्क्रिप्शन, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, आपकी चॉइस है, अदरवाइज यू कैन लीव दिस. ठीक है. देन आई एग्री टू दीक्षा's group guidelines. So you need to agree with this and then create a group. Your group is created. Now you are on page. So what you have to do, if you are finding for the courses which you are learning till 15th November तक आपने कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने हैं जो आपको यहाँ कोर्सेज पे मिलेंगे. सो कोर्सेज पे क्लिक करना है आपने. यहाँ बॉटम पे आपके पास कोर्सेज लिखा हुआ है, लाइब्रेरी. हियर यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल. So we have to complete the first one, CBSE integration, integrating gender in the teaching learning process. This one topic, and one of ICT and another one of integrated gender. This is the same. Okay, 3 topics we need to complete. Integrated journal. So here you have to download it. यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी डाउनलोड की. Then you need to download and there are given course detail. आप course detail पढ़ सकते हो कि why it is important and what is the importance of these modules for us. So there will be total I think 18 courses. So these 18 courses we need to study before. They have mentioned the date also. Course need to be complete by 15th 11 means 15th November. So what you have to do, module review. You can either review this module. Here they have given objectives. You can check out the objectives like this way. Here will be given in PPT form. So what are the objective of this module? So they have given here, identify and examine whatever stereotype, aptitude. These all are the objective for this course. And the course name I already told you. If you want to exit it, you can go back. Exit from this slide. Slide से आप exit हो गए हो, आप इसको rate भी कर सकते हो. Then back. Content outline. So what is about the content outline? तो आप इस पे जाइए. कंटेंट की आपको आउटलाइन पता लगेगी. ये जस्ट मॉड्यूल है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए. देन कंटेंट आउटलाइन की क्या क्या आपको इसमें मिलेगा. इंट्रोडक्शन टू जेंडर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. दीज आर द टॉपिक्स ऑलरेडी टीचर्स हैव स्टडीड इन देयर बीएड कोर्स, बट यू कैन गो बैक. whatever you want you can select from here. Now this will be clicked. So here you will be having, you have finished this module means जब आप इसको पढ़ लोगे आपके पास यहाँ ब्लू टिक आ जाएंगे and they will be give you certificates after completion of the 18 courses within 10 to 15 days. तो आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो तो CBSE आपको इसके लिए अवार्ड भी देते हो. और आपका एक कंप्लीट हो गया तो आप उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे. अब नाउ इंट्रोडक्शन टू जेंडर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो इंट्रोडक्शन इसमें है, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने पढ़ना है, ज़्यादा बड़ी स्लाइड्स नहीं है, ईजी है एंड आप इसको रेट भी कर सकते हो. इवन प्ले कर दो यहाँ से. देन यू विल बी हैविंग हियर नेक्स्ट कंटेंट, राइट. सो दिस इज वीडियो. इट विल टेक टाइम इन एक्सेसिंग, राइट. तो ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है. यहाँ पे वीडियोस दिए होंगे, इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में दिए होंगे. सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर मॉड्यूल. और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लास्ट में जब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये टिक हो जाएगा जब आप इस वीडियो को देख लोगे, तब यहाँ पे आपके पास टिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. ठीक है. इसी तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर है लर्निंग, ये पीपीटी में है, वो वीडियो में देख के पता लग जाता है बाहर से. तो आपने यहाँ पे इसको आगे एक्सेस कर लेना है. जो वीडियो में होगा वही आपके पास ये दिया होता है, एनसीईआरटी का है. तो इंट्रोडक्शन टू जेंडर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थीम इंटीग्रेटेड जर्नल जेंडर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ये आपको पता ही है कि ये इसका टॉपिक है ऑलरेडी. एंड यहाँ से आप आगे जा सकते हो किसी भी स्लाइड्स पे. ठीक है. निष्ठा की तरफ से ये, तो आप इसको रीड कर सकते हो. आपने ये रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है, तभी हमें कुछ पता लगेगा कि वाई द टॉपिक इज़ गिवन फॉर अस टू रीड. So this will help us in our teaching process. So we must go through it. तो अगर आपने इसको रीड कर लिया है, then you can exit it and then go back. तो आपका जो कंप्लीट हो गया होगा वो टिक आ जाएगा. अगर ये वीडियो कंप्लीट नहीं है तो आपकी ये टिक नहीं आएगी. तो कंटिन्यू लर्निंग पे आप कर सकते हो. कंटिन्यू पार्शली हो गया आपका, अगर पूरा हो जाता तो ये भी कंप्लीट हो जाता. इसी तरह से आपने ये सारा कर लेना है. एक आपने ये CHT इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इसको आपने करना है. तो इसको ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ से आपने ये 19 से पहले कंप्लीट करना है. पहले आप
जेंडर वाला कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आपको ये हेल्प होगी इसमें। तो जॉइन कोर्स आपने कर लेना है। जॉइन कोर्स में आपके पास आपको डाउनलोड करके देगा सारा। फिर उसके बाद आप कोर्स ओवरव्यू कर सकते हो को जो आप इसमें पढ़ोगे, जो है सेम ही है ये सारा, लेकिन इसमें आईसीटी का टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट में क्या मतलब रोल है वो आप इसमें जानोगे। ठीक है, एक और है आपके पास इसमें आपने जो करना है, आई एम टेलिंग यू, वेट अ सेकेंड। बट इंटीग्रेटेड लर्निंग आपने इसमें से, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने कोर्सेज, आप चूज़ कर सकते हो इसमें से, और भी वो आपने कब तक कंप्लीट करना है वो उसकी डेट वगैरह आपको सब कुछ इसमें दी हुई है। यहाँ पे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग नहीं दे रखा इन्होंने, तो आप ऊपर सर्च कर सकते हो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ओके, आपको कोर्स पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स आपने सर्च करना है जो आपको आपके स्कूल की तरफ से प्रोवाइड हुआ होगा। So here we have this course we have to complete before 15th of November. So same we have course modules in this. So similar way you have to check out for this. These three courses we need to complete before 15th of November. Okay, rest you can see other courses as per your choice. Thank you very much.